subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते कोनिचिवा, वेलकम टू thenupurtewari शो। और आज भी हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है और वो है डॉक्टर आनंद भगवत। एंड ही इज वर्किंग कंटिन्यूअसली एंड टायर्डलेसली इन कश्मीर। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में वो क्या काम कर रहे हैं और कश्मीर ही क्यों। डॉक्टर आनंद भगवत जी, मेरे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, madam. Thank you for having invited me on your show. Jai Hind. जय हिंद। तो हम लोग दर्शक पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने पूरे भारत में कश्मीर को ही क्यों चुना और वहां पे इतना क्या काम कर रहे हैं आप। Basically, I am a radiologist by profession, stationed in Pune of Maharashtra of India. But then 12 years back, we started one organization named Global Strategic Policy Foundation Pune, and we were initially just into Raksha and Videsh Niti, foreign policy and security. So in that connection, we had contact with lots of ambassadors, lots of recently retired top brass of Indian Army, including generals, air marshals, and of course admirals and all. So we used to have, programs with them for interested people around who were highly interested in having the knowledge and information about these fields of security and foreign policy, but as it goes, usually they get it through WhatsApp and all, and that's war. So we wanted a direct communication between these scions of foreign policy and defense policy and these people. They included students of foreign policy. Our audience included of scientists, DRDO employees, and things like that. So it went very well for say around 8 years, and then once while we were having such a program to felicitate a Kargil martyr named Captain Hanifuddin, we conducted that program in IICC, India Islamic Cultural Center of Delhi. And that time, since it was IICC, we majority of the audience was Muslim, and we got such an excellent response. We told those people, youngsters, young Muslims, it was overfull, the program. It was right on the eve of APJ Abdul Kalam's birthday also. So two things clubbed together. It was such a success that we decided to add another point to our agenda, and that was communal harmony and then national integration. A few of Kashmiris were in the audience in that Delhi program where we felicitated the next kin of Captain Hanifuddin, a Kargil hero. Those Kashmiris were so impressed, and then after the program, they approached us and said, this kind of a program needs to be conducted in Kashmir. So we went to Kashmir say around 4 years back, and that time it was first of its kind program in Kashmir where we felicitated the next kin of 100 odd Kashmiri martyrs of the security forces like BSF, Jammu Kashmir Police, and Indian Army. It's obvious that since it was Kashmir, almost all of them were Muslims, though a few Sardarjis were there, a few Hindus, but then majority of them. In the beginning, we were to felicitate only 5 of them. But then 5 of them, the next kin of 5 of them were a bit reluctant to come and join the program because they thought
then there'll be, marked men and things like that. Kashmir, those days, 4 years old, story I'm telling you. And then, so we made it 100, we felicitated next kings of 100 martyrs of Jammu Kashmir for that matter, basically. And then it worked, they all flocked in. But the first time we, decorated the whole of not just Shere Kashmir International Convention Center, not just Tulip Garden, not just that Dal Lake Road, but almost that whole area with tirangas. So ये People were, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं आप? 4 साल पहले की बात कर रहे हैं. और दैट टाइम पीपल वेर एप्रीहेंसिव, हाउ वुड इट बी टेकन बाय द कश्मीरीज. But believe me, since every 50 meters there was a tiranga that we had put on, it just changed the whole atmosphere. Kashmiri people really appreciated it, joined in, literally The flocked mission. in. We were expecting, I mean, the capacity of the hall was around 450, but then we had to open up the adjoining halls so as to accommodate 750 people, Kashmiris, that wanted to be a part of this first of its kind program to felicitate the real heroes of Kashmir. Till तो then, the side be, some separatists killed in action were being, felicitated and things like that. But then that suddenly changed with our program on 4th of April around 4 years back. And since then, since we got an excellent response, then we could judge that the tide has turned, and now the Kashmiris are fully in favor of India. So we decided to be there, and then since that day, GSPFP has concentrated on Kashmir. तो That's how it went. पहले जब आप काम करना शुरू किया आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था? नहीं, वो पहले तो क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे प्रोग्राम्स तो रेस्ट ऑफ इंडिया में होते रहे, जैसे कि यूपी है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक. So there never was a problem. And then with every program, the kind of programs we improved on our quality also. And then people started appreciating. They really wanted to know about security right from the horse's mouth. I mean, the real recently retired top brass of Indian Army, and they wanted to know about the foreign policy through the ambassadors. We had हम्म. ambassadors like say TCA Raghavan, then Vivek Ji Kadju, Nisha Kanji Oja, like that. They were the bosses in their fields, and they again were recently the last appointment for example, Ambassador TCA Raghavan he was an ambassador to the Indian embassy in Islamabad, so Pakistan. So, I mean, people wanted to know how things go, how things work, what happens. हम्म. I mean, and that time, it was only through the social media that they could get this information, which they weren't एग्जैक्टली. happy. ट्रू. Right. तो कश्मीर में जो आप काम कर रहे हैं, इतने पॉजिटिविटी ला रहे हैं, इतने लोगों को आप पूरे भारत के स्रोत के साथ जोड़ रहे हैं पूरे, तो उसमें जो आपको जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कश्मीर में अभी आपका क्या काम चल रहा है? हाँ, कश्मीर में हुआ ऐसे कि आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ दिस 4th April शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर प्रोग्राम, we हम्म. we were confident that the Kashmiris now have changed, sort of. I mean, the tide has turned, and now it's not as it was described world over. हम्म. Or maybe it was a disinformation propaganda by our enemies that Kashmir हम्म. is a no-go zone. Don't. I mean, it's all full of खून की नदियां बह रही है, कत्लो गारत जारी है, मुसलमानों पे तशद्दुद हो रहा है, और आर्मी है जब तक कि कश्मीर इंडिया के पास है.
ये सब पूरा पूरा झूठा है, ये हम तो जान गए थे, बस दुनिया हम्म को और इवन रेस्ट ऑफ इंडिया को दिखाना चाहते थे। तो करके हम्म हमने क्या किया, so called hotbeds of terrorism, like epicenters of terrorism in Kashmir Valley. As हम्म you know, the valley is just 135 kilometers by 40 kilometers, not a हाँ very big place. But then there was a lot of propaganda, even in India. Even हाँ Indians always ask me, why do you go to Kashmir? Yeah, it's a risky place, and why do you want to risk your life and things like that. It wasn't the truth. We knew for sure. So we started from the hinterland. We now have a network throughout all 10 districts of Kashmir Valley, but then deliberately started from, so-called red spots. Like we went to the hinterland, like Pulwama, Chopia, Anantnag from South Kashmir. Then we went all the way up to Kargil. Then while we were in Srinagar, instead of, safe places like Badami Bagh cantonment, no, we went to Idgah, downtown, Charbal, places which were labeled as, no-go zone for non-Kashmiris and especially non-Muslims. But it wasn't that way. I mean, we got a very good reception. जाहिर है कि ज्यादा तो मुसलमान ही है वहाँ पे, 98% तो मुसलमानों ने इतना बहुत दिलो जान से हमारा स्वागत किया। हाँ, देन फिर हमने क्या किया कि ये सब जो कार्यक्रम थे ना, लाइक आई टोल्ड यू, कि वी स्टार्टेड द अदर वे राउंड, इंस्टेड ऑफ फ्रॉम सेफ प्लेसेस टू द ट्रबल्ड एरियाज के बजाय हमने उल्टा किया। तो वहां पे भी इस किस्म के जगहों पे भी कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। पीपल लिटरली वेलकम द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक तो पॉलिसी मतलब फाउंडेशन आप पुणे। बोलना चाहते हैं कि जो फैलाया जाता है कि कश्मीर के लोग ऐसे है वैसे है, ऐसा है ही नहीं। इवन भारत के अंदर भी ये फैलाया जाता है कि कश्मीर में ये नहीं है। शायद पहले था, लेकिन इट वाज गोइंग, एंड लाइक आई टोल्ड यू, द 4th April program of ours was the हम्म watershed movement. हम्म People were waiting, they wanted to join in with the rest of India. They had understood which way their bread is butter sort of, and then which would be in the best interest of Kashmir Valley. So they हम्म had already sort of decided, just wanted a formal invitation from some organization like ours. हम्म Then what we did is, then the next year we took them to one program of ours in Mumbai. It हम्म was basically for 300 top of the line Muslims, हम्म but then we took 50 or I mean 35 odd students from Kashmir and हम्म 15 other well settled people from Kashmir for that program, which we हम्म conducted in Mumbai of Maharashtra, हम्म where they had interaction with the rest of the audience, with हम्म I mean, speakers, dignitaries on the dais, and then, it was a game changer program. We did it on 6th of September in Mumbai in Hotel Leela. हम्म A five-star hotel is next to the airport for convenience. 35 students we had, taken by to and fro by air, Kashmiri students हम्म ages 18 to 25. That हम्म worked like a magic. They got to see the rest of India, and हम्म the Muslims from rest of the India got to see these Kashmiri boys, whom they till that time they had an image that these are the stone pelters sort of, avoiding education, इनका पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसे ही फालतू में पत्थरबाजी कर रहे हैं, सेना इंडियन आर्मी को ये तकलीफ कर रहे हैं, फिर टेररिस्ट कमिंग अक्रॉस द बॉर्डर उनको हेल्प कर रहे हैं, ये वो, ये जो इनकी भी गलत फहमी थी रेस्ट ऑफ द हम्म इंडिया, रेस्ट इंडिया के ऑडियंस के दिलों में, वो भी हम्म निकल गई। और ये कश्मीरी बच्चों को भी पता चला, दो चीजों का उनको पता चला। एक हम्म तो कि रेस्ट ऑफ इंडिया हैज लॉट्स ऑफ लव फॉर देम, द कश्मीरी बॉयज एंड ऑल, हम्म एंड दूसरी चीज ये है कि उनको हमने गाइडेड टूर भी दिया मुंबई का, अच्छा एंड देन दे फाउंड, हाँ,
जानबूझ के after the program we arranged one guided tour for these boys in Mumbai. They अच्छा, saw around and then they found out that Kashmir has lagged 33 33 years of का development डेवलपमेंट, and हाँ, दुनिया कहाँ चली गई, कितनी प्रगति और जगह पे रेस्ट ऑफ इंडिया में हो गई, और हम लोग पिछड़े बोले तो हुए वो हैं। तो थे नहीं जाते थे. They were, as I told you, 18 to 25, so they weren't there when the all this started in Kashmir, the disturbances and that पंडितों पे अत्याचार वगैरह जो हुए थे. These boys were in the party to it, obviously. हम्म, But then उसके आफ्टर इफेक्ट्स उन्होंने अपने आंखों से देखे कि दुनिया कहाँ चली गई, और हम हम लोग कहाँ वहीं पे के है। वही है. हाँ, जैसे कि 90 में थे वैसे ही है, उससे भी खराब बदतर हो सिचुएशन गए। कश्मीर में होगी. हम्म। हाँ, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ उनका एजुकेशन नहीं हो पाया, क्योंकि हमेशा वो ऐसे ही धारा का 144 लगती रही, तकलीफ होती रही, लोग मरते रहे खामखा, पत्थरबाजी करते रहे. इंडियन हम्म। आर्मी ने भी बहुत पेशेंस रखते हुए इस किस्म से, आई टेल यू नुपुर जी, नो अदर आर्मी इन द वर्ल्ड वुड ट्रीट दिस काइंड ऑफ, कि अपने अपने ही लोग हैं, अपने ना लोग समझ हैं। है, किसी के बहकावे में आके ये कर रहे हैं. और तो क्या। भले नुकसान सहन करके पूरा पूरा खुद पे कंट्रोल रख के, हम्म। पूरा पूरा एक भी इंसिडेंस ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ पे आर्मी लॉस्ट इट्स अपना पेशेंस एंड कूल। indiscriminately fire on the local population. No, they always were very selective. All the security forces, be it Jammu Kashmir Police, be it BSF, be it the Indian Army, they always made it sure that they always approached the local population with lots of love, in spite of their badmashi. But they acted very tough with the infiltrators and terrorists coming across from across the border. So it was a very, controlled sort of and very well thought of management of this conflict zone of Kashmir by the security forces. I have to, salute them for that. ट्रू। None of them ever patience and handled it and cool down everything. ट्रू। uh, when this had recently started, one of our panelists, Jan Sayyidata Hasnain, हम्म। he was appointed as the GOC of 15 Chinar Corps, which looks after basically Kashmir, by none other than General VK Singh, then the Chief of Army Staff, COAS of Indian Army, and now a minister. He always has, sort of patronized our organization. He delivers speeches, and people love him like anything. The, General Syed Atta Hasnain has a doctrine of himself, conflict zone management doctrine of General Syed Atta Hasnain, named as Heart, is famous and very popular with armies world over, including US Army, including Singapore, Malaysia, सब जगह पे उनको बुलाते हैं. भैया आपने कैसे, जनरल साहब आपने कैसे मैनेज किया कश्मीर, जो कि लोग समझते थे कि कौन चीज है, अभी दिस कैन ओनली एंड इन फर्दर डिस्ट्रक्शन, वो नहीं होने दिया उन्होंने. He always handled the local population with lots of patience, like I told you, with love, अपनापन. उनको हमेशा कभी भी ऐसा महसूस नहीं हो गया कि आप पराये हैं, आप इंडियन हो. ये हमेशा जताते रहे हमारे जनरल साहब. और एट द सेम टाइम बीइंग वेरी टफ विद द infiltrators, इन्फिल्ट्रेटर्स। the infiltrators which were हम्म। being in by IS and Pakistan. हम्म। सही So बोल रहे that's हैं आप how. डॉक्टर साहब। मतलब इंडियन आर्मी इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना प्यार, उनके मन में इतना प्यार है लोकल जी लोगों के जी जी लिए। जी, फिर दो चार बार सैलाब आया. हमारे चैनल साहब के टेन्योर में ही सैलाब आया था. सब वो कारपेट बुनाई की मशीनरी बह गई थी. फिर कभी कुकिंग गैस की किल्लत होती थी. ये सब उन्होंने इतना
अपने खुद के बच्चे हैं, ये समझ के उन्होंने सब मैनेज किया है. इट wasn't just the security part of it. It was, uh, looking after the local population as if they अपने बच्चे हैं खुद के. इस तरह हम्म. से इंडियन आर्मी ने देखा है कश्मीरियों को. और फॉर मोर देन 3 decades इसी का फल है ये. I mean, hats off to the Indian security forces. They have done a टोटली, great job. टोटली. जैसे आपने बोला डॉक्टर साहब कि वो तो अपने ही लोग हैं, बहकावे में आ गए थे, हाँ वो हाँ बस समझ गए बिल्कुल. अभी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. And if you, you have gone there, you have done a lot of work there yourself, so you have got the taste कि Kashmiris कैसे हैं. They are beautiful, very good people. They मैं are तो दिल innocent छोड़ that के way. आ गई उधर. हाँ. तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, इवॉल्व हैं. उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास हुनर है, और उनके पास काबिलियत है, करना चाहते हैं कुछ. अभी लास्ट ईयर को वो पक्का भर के निकालेंगे कश्मीरी की. ये हमें पूरा पूरा हम जानते हैं. एक तो कुदरत का नजारा है इनके पास, है ना. हाँ, पैराडाइज ऑन अर्थ, वापस बनेगा पैराडाइज ऑन अर्थ. दूसरी एकदम. चीजें थे उनके पास, ये कितने खूबसूरत वो शॉल्स एंड आर्टिफैक्ट हैंडीक्राफ्ट, क्या कितने हुनर है उनके पास. वापस आएंगे वो. और फिर एकदम. कुदरत का दिया हुआ टूलिप्स एंड व्हाट नॉट एंड सेब एंड आर्चर्ड, वो तो है ही उनका. तो आई थिंक, और वो समझदारी बहुत है उनमें. वो समझते हैं, इंटेलिजेंट कौम है, बहुत इंटेलिजेंट कौम है. बहुत तो इंटेलिजेंट है. they'll bounce back, they'll come back, they'll definitely make up for the lost decades. More than 3 decades. I am very जरूर. sure, maybe 5 years down the line, we'll find out that it's a real paradise. It will beat most of other, tourist destinations, even Switzerland. बहुत टोटली. बेहतरीन लोग हैं, बहुत बेहतरीन नज़ारा है. तो एंड सबसे बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको हैंडल किया. हैट्स ऑफ. पूरी तरह. आई एम फर्स्ट हैंड विटनेस कि कैसे उन्होंने, विद किड्स ग्लोव इतना किया, कभी नुकसान सहा. इनके कितने लोग मारे गए इंडियन आर्मी के, कितना कितने घायल हुए. बच्चे ये करते थे पत्थरबाजी. हाँ. तो इंज्योर हम्म. होते थे, उन्होंने गोली नहीं चलाई. रिस्ट्रेंट कि नहीं यार, ये नासमझ है, लेकिन कल ये समझ जाएंगे. आर एनिमी ऑलवेज वांटेड अस टू बी, एन आई फॉर एन आई पॉलिसी रखना चाहते थे. हम्म. बोले तो दे ऑलवेज वांटेड इंडियन आर्मी टू हैव दैट आई फॉर एन आई, eyeball for eyeball policy. Indian हम्म. Army was too smart, too good कभी for फॉलो them. नहीं किया. हाँ नहीं किया. जब हम्म. भी तो जो अभी, अपने ही अभी इंडियन लोगों आर्मी. को क्यों मारे हम? वो तो अपने ही है, हाँ. थोड़ा सा भटके नहीं हुए थे. नहीं. राइट राइट. वही. As far as my opinion is concerned, no other army in the world could have done this. ट्रू. No other, no other security force could have done this. No country. नो कंट्री. They हैट्स ऑफ टू their देम, हैट्स ऑफ टू certificate, देम. salute them. I सैल्यूट salute देम. them. इंडियन आर्मी के मतलब बच्चे बच्चे फैन होना चाहिए. वो जो स्पेशली जो कश्मीर में जो काम कर रहे अब हैं वो ये भी है. कोई नहीं कर सकते थे. अब हुए भी हैं. अभी आप जाइए, कश्मीरी बच्चे, छोटी बच्चियां सब एकदम आर्मी का सोल्जर देखते हैं तो दौड़ते हैं उसका हाथ पकड़ने को, उसको राखी बांधती हैं लड़कियां. दे फील सेफ व्हेन these guys are around. They feel safe from the terrorists coming across the border if these Indian soldiers are around. एंड ये जो प्रोपागंडा है ना पाकिस्तान का, बिल्कुल विपरीत है चीजें. कोई नहीं, ये अपनी सगी बहन जैसा ट्रीट करेंगे. एक आधी रात को 11 बजे भी, 12 बजे भी आपको आजकल कश्मीर के श्रीनगर के रोड्स पे आपको लड़कियां मिलेंगी, फीलिंग सेफ कि कोई दिक्कत नहीं है. हमारे भाई लोग हैं ना बंदूक लेके खड़े हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें टच नहीं कर सकता फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. That's the relation they have built.
अभी बची चीज सोशल, हाँ। है ना? हम्म। वो वही। अच्छा, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमेशा कुछ तकलीफें उभर के आती है। हाँ। years of presence of people with guns, हम्म। years of बीच बीच में लगे हुए कर्फ्यूज, years of धारा 144, डिस्टर्ब्ड एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन नहीं है तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं आई उनको रेस्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि हम्म। पढ़ाई नहीं हुई। अच्छा, अनरेस्ट है, ऐसा इतना माहौल विदेशों में तैयार किया गया हमारे हम्म। दुश्मन के द्वारा, तो उसके कारण एक्सटर्नल फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई वहां पे, तो हम्म। जाहिर है इकोनॉमिकली वैसे पिछड़ गए ये लोग, हम्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन में पिछड़ गए, एजुकेशन में पिछड़ गए, एम्प्लॉयमेंट में पिछड़ गए, हम्म। टूरिज्म मार खाया खा गया हम्म। उनका। हम्म। They suffer a hell of a lot, but these things can be repaired. But these टोटली। things can be repaired by people like they are all there. They need help, but it has to be done by people like you and me. All the organizations. हाँ Government जी। is definitely doing its part. The army हम्म। is definitely doing more than its part. But then हम्म। it has to be, all around help that socially, that can only, make it possible for them to catch up ट्रू with the ट्रू। rest of India. आप सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। एक्चुअली बस हमारे कुछ हमारी फैमिली के कुछ लोग थोड़ा सा पिछड़े गए हैं, हम सब उनको उठाएंगे साथ में। हाँ, बिल्कुल उठाएंगे। अरे, सुबह का भूला शाम को घर आया है, तो ही इज हम्म। वेलकम, ही इज ए एकदम। फैमिली। हम पूरी दुनिया को ही नुपुर जी अगर बोलते हैं कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव है, पूरी कुटुंबकम। दुनिया हमारी एक कश्मीरी तो बिल्कुल सगे घर के बच्चे हैं हमारे। और क्या, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी हमारी और जिम्मेदारी है ये। फॉर्चुनेटली रेस्ट ऑफ इंडिया में से हम लोग अभी कर रहे हैं ना, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके टूरिज्म के लिए, उनके हैंडीक्राफ्ट बेचे जाए रेस्ट ऑफ इंडिया में, इसके लिए वो ड्रग्स के चपेट में ना आ जाए बच्चे फ्रस्ट्रेशन के कारण। इसके लिए हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं ना, तो इतने बड़े पैमाने पे रेस्ट ऑफ इंडिया से लोग सामने आ रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं हमारे हम्म। बिछड़े हुए भाई के लिए। हम करेंगे, हम आएंगे, बोलिए क्या करना है डॉक्टर साहब, पूछ रहे हैं, सामने से आके पूछ रहे हैं। तो आई मीन आर एनिमीज आर डिफीटेड, डिफीटेड ऑल द वे। एग्जैक्टली। कुछ भी होने का अभी कश्मीर इज अ डन डील, कोई नहीं है। कश्मीर के साथ भारत और भारत के साथ कश्मीर इतनी तरक्की करेंगे, नंबर 5 पे हम्म। तो इकोनॉमिकली हम आ ही गए, हम्म। fastest growing economy है ही हमारी। We have gone, miles ahead in the science, technology and whatnot. तो और फिर सोशली तो पहले से है, हम हजारों सालों की हमारी परंपरा है, हम तो विश्व संस्कृति है, गुरु है। विश्व गुरु है हमारी। करके हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरे दुनिया को असल राह रास्ता, दिखाए। हम्म। को एग्जिस्टेंस का जियो, जीने दो, एक ही फैमिली है एक ही फैमिली ये है। और ये हो जाएगा। वी हाँ। विल बी आर, बट वी विल prove ourselves to be the Vishwa Gurus, and the world will follow us, you see, towards peace and prosperity. टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जैसे हाँ जैसे हम कर रहे हैं कश्मीर में, हम पूरे दुनिया को हम दिखाएंगे कि हम बस हाँ, प्यार से दिल, they don't प्यार have से the हम effect. दिल जीतते हैं। हमें बंदूक हाँ, की जरूरत नहीं है, बस हम प्यार फैलाते हैं। ये क्या है कि ये बहुत प्राइमरी किस्म की बाकी के लोगों की संस्कृति है, कम है, इनको एक एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी इवॉल्व फिलोसफी है ही नहीं, उनकी हो ही नहीं सकती। हाँ। हाउ हाउ उनकी हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। हम हजारों लाखों साल तो है, हम इतने और क्या। इवॉल्व हुए हैं, करके हमसे ये लोग सीखेंगे, सीख भी रहे हैं, सीखेंगे पक्का। They have टोटली to follow सीखेंगे। it. और जब कश्मीर की बात आते हैं डॉक्टर साहब, कश्मीर तो हमारे जहाँ पे वेद लिखे गए थे, जहाँ स्पिरिचुअलिटी के हब है, कश्यप मुनि के बिल्कुल। जगह है, हाँ, महादेव के जगह है। बिल्कुल वेद लिखे गए यहाँ पे, सब ज्ञानी लोग यहाँ पे आके
इसी धरती पे जीसस बैठकर क्राइस्ट भी आए क्योंकि थे। सबसे ऊंची किताबें जो है ना, हम्म। हिंदू धर्म की हो या सनातन धर्म की, यहीं पे लिखी गई है। यहीं पे ये हम्म। लोग मिलते थे, इकट्ठा बैठते थे। दे यूज टू डिस्कस, लर्न एंड राइट एंड गाइड हम्म। आम लोगों को। तो ये भूमि का ये है ही जादू। कश्मीर से ही तो हुआ करके कश्मीर में तो। जादू हम लोग जादू है, इसको सचमुच। शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं ना हम। शीर्ष बोले तो खाली स्कल थोड़ी ना होता है, हाँ। ब्रेन एंड मच बियॉन्ड। तो ये एग्जैक्टली। हाँ, तो विद कश्मीर इंडिया विल प्रॉस्पर एंड literally teach the rest of the world how to live, how to coexist, how to prosper, how to have peace and prosperity, and divine things we can teach them. Like टोटली। one of them, you taught them, Nupurji, yoga. You had lots of interactive sessions for ये अपना उनका आपने सोशली उनको ये किया, मोटिवेशन किया आपने। ग्रेट ग्रेट थिंग। तो आप क्यों आई थी वहां पे, बोलिए? मैं पूछ रहा हूँ आपको। हाँ, यही ना। आप क्योंकि मेरा आपके आप मेरा क्वेश्चन करेंगे आप मुझे। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपके बताया जो कि संस्कार है ना, मैंने तो अपना दिल आपके छोड़ जो के आ गई। हाँ, तो यू बीइंग एन इंडियन, आपके कल्चर में ये है कि जाइए, आपके पास जो सबसे अच्छी चीज है वो लोगों में बांटिए, उनको भी ले आइए अपने साथ में। आपका उनको कंपटीशन थोड़ी ना देखती है, मैडम। हाँ, जो बच्चियां आज भी आपका नाम, वहाँ पे हम घूमते रहते हैं ना कश्मीर में, तो जो बच्चियां आज भी आपका नाम निकाल रही हैं, इन शॉर्ट स्पैन यू हैव बॉन्ड तैयार हो गया आप लोगों में। हाँ, तो क्यों? क्योंकि आप चाहती हैं कि द बेस्ट, यू नो मेरे पास सबसे खूबसूरत जो चीज है मैं वहां दे आऊं। मेरे पास जो देने के लिए, जो पढ़ाने के लिए मैं वहां पे पढ़ाऊं, क्या आपको पैसे थोड़े ही ना मिले उससे? हाँ, नहीं, यही मैं तो यही तो खुद के पैसे से सब कुछ किया। हाँ, तो यही तो भारत की खासियत है। हाँ, पर लेक्चर इतने पैसे ऐसा वगैरह नहीं रहता है। ये मन मैंने में पूरे आया आपके, सारे फ्री तो में किया, मैंने कुछ सारे कर दिया। सारे। फ्लाइट से हाँ, लेके, मेरा स्टे से देश है। लेके, सेशन, सब कुछ फ्री, सब कुछ। मेरा देश है, मेरे भाई है, जननी मेरे जन्मभूमश्च बच्चे। स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ, दे नीड हेल्प, दे नीड टू बी उंगली दी आपने, पकड़ के चलना सिखाएंगी आप उनको, सही रास्ते पे लाएंगी। डिप्रेशन कम करने की कोशिश किया आपने, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में हमेशा रहता है। 3 decades ऑफ दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। मैं डॉक्टर हूँ तो जानता हूँ कि एक खास किस्म का डिप्रेशन के शिकार होते हैं, फिर वो ही ड्रग्स में तब्दील हो सकता है, एडिक्शंस में। तो ये सब आप कर रही है ना, अपने आप कर रही है ना, खुद होके। यू फील लाइक डूइंग समथिंग फॉर पीपल हु नीड दिस। यू हैव आइडेंटिफाइड देम। आपका समय, आपके पैसे, शायद थोड़ा बहुत रिस्क उठा के आप वहां पे गई है, एंड यू वांट टू हेल्प। दिस इज व्हाट इंडिया इज। दिस काइंड ऑफ इंडिया हैज टू बी विश्व गुरु। और क्या, और क्या मतलब। सचमुच मैं अगर बोलूं, डॉक्टर साहब जाने से पहले ऐसा कोई नहीं था जो मुझे मना नहीं किया कि मत जाओ। लेकिन जैसे मैंने हाँ, आपको बताया कि इस जी धरती जी ने मुझे पुकारा। जी जी जी। एक मैं छोटी स्टोरी बोलता हूँ आपको इस पे, कि ये मना करना, प्रोपोगंडा, हाउ इट वर्क एंड हाउ इट वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर। हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा। एनआरआई इंडियन है, जो लंदन के मेयर रह चुके हैं, लेबर पार्टी के लीडर है। तो हम्म। वो एक बार मेरे को कहीं बंगलोर में मिले थे, तो बोले, हम्म। अरे यार, वो आप का कश्मीर वो नो गो जोन है, कितनी खून खराबा चल रहा है उसमें, लॉट्स ऑफ कुछ भी नंबर्स बोलते हैं लोग, कि वहां पे 8 लाख इंडियन आर्मी है। ये सब हम्म। झूठ सरासर, और ये है, हम्म। बिल्कुल झूठ है।
जस्ट इमेजिन 135 बाय 40 किलोमीटर में 8 लाख लोग खड़े तो भी रह पाएंगे क्या? अब अदर हम्म देन दिस लोकल से 80 लाख और कश्मीरी, तो कुछ भी लेकिन चलिए, वो बोले कि वो मेरे को बोलने लगे, आई हैड अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टिल दैट टाइम, आई हैड गॉन देयर मे बी 80 टाइम कश्मीर हम्म में। हम्म चलिए मेरे साथ चलिए आप, आपकी पूरी पूरी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आप हमारे हम्म साथ चलिए, आंखों से देखिए और फिर हम्म बाद में कमेंट कीजिए। वो हम्म आए, उन्होंने देखा ये वो यहाँ पर तो घूमे, तो बोले यहाँ तो कोई नहीं यार, कोई खून की नदी नहीं बह रही, कोई कत्लो गारत नहीं चल रहा है, कोई यहाँ पे तशद्दुद नहीं हो रहा। अरे इंडियन आर्मी इतनी प्यार से पेश आ रही है इन लोगों से, ये लोग भी कितने लाइक कर रहे हैं इंडियन आर्मी को, लोकल। मैं बोला हाँ देखा ना आपने, तो ये तो नहीं है। तो वो बोले, फिर उन्होंने एक लंदन में सुनी हुई लेबर पार्टी के उनके एक एमपी की सुनी हुई बात उनको याद आई। वो बोले यार यहाँ पे यीशु क्रिस्ट की एक ये है, टोम्ब है यहाँ पे रोजबल में, हाँ श्रीनगर में। लेकिन हाँ वो यार कोई दुनिया का कोई भी आदमी वहां पे जा नहीं सकता। बोले वो हाँ इतना ये गवर्नमेंट और ये टेररिस्ट और ये मुस्लिम, ये किसी को जाने ही नहीं देते, ऐसे लोग हाँ बहुत हो। और पूरा पूरा लेकिन मैंने कहीं किताब में पढ़ा था कि यहाँ पे हाँ है बुक में वगैरह यीशु हम्म क्रिस्ट की टोम्ब। हम्म तो बोला अच्छा, उज्जवल की बात कर रहे हैं आप, चलिए बैठी गाड़ी में, हम लेके गए। खुला था रोजबल, हमने और खुलवाया उसको। he said can I go in, then he photographed things, वीडियोग्राफी की उन्होंने। he thought as if उसको अली बाबा की गुहा का मिल गई देखने को। वही अरे तो बोले, डॉक्टर साहब। अरे उनको पता ही नहीं था। वो बोले अच्छा, वो जब भी बाद में गए ना, हम्म वापस गए लंदन, तभी हाँ उनको एक लेबर पार्टी का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जिसको मैं नाम नहीं लूंगा वापस, हाँ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लेबर पार्टी का जो था, उसको हाँ उसने बोला मैं यहाँ पे बोले पागल हो क्या, हैव यू डू यू हैव सुइसाइडल टेंडेंसीज बोले। तो वो बोला नहीं ऐसी बात है नहीं वहां पर, देर इज जीरो थ्रेट टू लाइफ, टोटली आप चलिए। टोटली। हाँ, तो डॉक्टर फिर साहब हम उन्होंने पूरे दुनिया में ही फैलाएंगे कि आइए कश्मीर, आइए भारत, हम आपको ले जाएंगे कश्मीर और बिल्कुल आइए, दिखाएंगे कि बिल्कुल क्या बिल्कुल। धरती का ये स्वर्ग है। चलिए एक हाँ साथ हाँ, मिलके पूरे हम जो थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं उनको आगे उठाते हैं। और आज बिल्कुल मुझे ज्वाइन बिल्कुल। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.